Hello everyone, welcome to the next lecture on the CSRNet mathematics solution. Today I will explain you the part B of the differential equations. Definitely I will explain you with the help of the shortcut tricks. Myself Dr. Harish Garg, you can follow my YouTube channel where you can find the playlist of the CSRNet. The last lecture was on the LPP. You can see I have uploaded with the help of the shortcut tricks. Apart from them, you can see the gate and the complete CSRNet 2025 solution is available in this playlist. You can subscribe my YouTube channel and must watch all these lectures. These are very helpful for you. Now let's start with the first question. So I will try to explain this lecture in both Hindi and English. Fine, so that everyone can understand it. पहला क्वेश्चन, हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन द 1 मिनट. रिमेंबर आपके पास सिर्फ 1 मिनट का समय है एग्जामिनेशन में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. फाइन, एंड दिस क्वेश्चन इज अगेन वन ऑफ द इजीएस्ट वन, इसीलिए मैंने इस पिक्चर को फनी पिक्चर के लिए डिफाइन करा. फाइन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दैट, always remember how you can solve this in a 1 minute. So if you read the statement very carefully, one solution is known to you. This is the solution which is given to you and your target is to find the second solution. Fine. अगर आप सबने मेरी थ्योरी लेक्चर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन देखा है, दिस द प्लेलिस्ट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस. इफ यू वॉच माय थ्योरी लेक्चर कंप्लीटली, then you can solve this lecture very well or this question very well. You can see this question is asked from this lecture. Solution of the differential equation when one solution is known to you. What is the shortcut trick is? Firstly, I can write the differential equation. Say this is my p y dash plus qy is equal to 0. Okay. And one solution y1 is known to you. How you can find the second solution? Second solution you can find it directly by using y2 is y1 integration of y1 square e raised to power minus p divided by a0 dx. This is the same shortcut tricks I have explained. देखिए 10 मिनट का लेक्चर और आपको 15 से 20 एग्जाम्पल मिलेंगे इस लेक्चर में. तो 10 मिनट में आपको 15 क्वेश्चन मिल रहे हैं, इसका मतलब शॉर्टकट ट्रिक से एक्सप्लेन करा हुआ है. फाइन, सो नाउ यू कैन सी व्हाट इज द y1 e raised to power 2x. What is the y1 square? E raised to power 4x. So can you find the integration of this part? E raised to power minus p. P is this is minus plus 3 plus 4x divided by coefficient of the y double dash. So can you get the answer of this? It is e raised to power 3 of log x plus 4x. So that will be x cube e raised to power 4x. Fine. So can you get the answer of this? It will be, so the answer of y2 is my e raised to power 2x x raised to power 4 divided by 4. So ये आपको y2 हो गया. Now you can check whether they are satisfied the given conditions and clearly say they are satisfying them. Now your target is to check whether they are increasing or decreasing. So can you find the y2 dash? It is my e raised to power 2x over 2, that is 4 x4 plus 4 will be cancelled out, e raised to power 2x into x cube, and clearly say this condition also satisfied. At the point 1, it is e square by 2 plus e square, it's a 3e square by 2. Now whether it's increasing or decreasing, you can see e raised to power 2x I can take in common, x raised to power 4 over 2 plus x cube. Now clearly say which is my greater than 0 whenever x is my greater than 0. So that means this is my increasing. So third option is cancel out. First option is the correct option. Second option, your target is to find e raised to power minus of 2x of y2. So what is a y2 is my here? So the solution is x4 divided by 4. Does it goes to the 1? No. So that means this value will be cancelled as x approaches infinity. Does it goes to the 0? No. So that means D option is also cancelled. A option is the right answer. So काफी आसान था क्वेश्चन. You just use this formula. मैं इसलिए कह रहा हूं आप थ्योरी लेक्चर को भी कवर करिए. डिफरेंशियल इक्वेशन की प्लेलिस्ट है आपके लिए. कंप्लीट सोल्यूशन इसके अंदर दिया हुआ है विद द हेल्प ऑफ द शॉर्टकट ट्रिक्स. Start from this complete value, Laplace equation, Fourier series, all are available in this playlist. मैं उम्मीद करता हूं आप वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करेंगे.
मैं इस वीडियो के बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रियल एनालिसिस भी अपलोड करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले मेरे को इस वीडियो को 500 प्लस लाइक्स और कमेंट्स पे देने होंगे। फाइन, तभी मैं आप समझूंगा कि आप इस वीडियो को यूज करते हो और हेल्पफुल है। अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन दैट व्हाई दे कैन पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स ओनली फॉर यू। ओके, सो उम्मीद करता हूं आप वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करेंगे, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए डेस्परेट हूंगी। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन इन द 1 मिनट टाइम पीरियड्स? अगेन अगर आपका आंसर था नो और अगर आपका रिएक्शन ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एग्जामिनेशन में, तो बिलीव मी दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन अगेन। हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ द ग्रीन फंक्शन। और अगर आप एग्जामिनेशन में जाने से पहले मेरा ये ग्रीन फंक्शन वाला लेक्चर सुन के गए हो, दिस लेक्चर जुलाई 24 का सॉल्यूशन मैंने एक्सप्लेन करा था ग्रीन फंक्शन से, फाइन, तो आप इस क्वेश्चन को विद इन द 5 सेकंड और विद इन द 10 सेकंड सॉल्व कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले ग्रीन फंक्शन कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूं, फाइन, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ग्रीन फंक्शन जब भी आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की है विच इज 0 और इसका कोफिशिएंट कुछ ले लेते हैं a0, फाइन, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हमेशा इस फॉर्म का होगा, लैम्डा टाइम्स, अगर x की वैल्यू 0 से 1 है देन इट्स 0 to 1, अगर ये वैल्यू 0 से l है तो देन इट्स वैल्यू इज 0 to l, द फंक्शन ऑफ द कर्नल, फाइन, इनटू y ऑफ t। इस फंक्शन g को हम बोलते हैं कर्नल फंक्शन, फाइन, और वही कर्नल फंक्शन आपको इन्होंने ऑप्शंस में दे रखा है। बट द क्वेश्चन इज हाउ यू कैन फाइंड दिस कर्नल फंक्शन। वेरी वेरी सिंपल, फाइन। पहली बात, इस कर्नल का जो आंसर होगा वो हमेशा दो कैटेगरी में डिफाइन होगा, f1 f2 में, फाइन। f1 की वैल्यू हमेशा ही 0 से x 0 से t में लाई करेगी और सेकेंड फंक्शन की वैल्यू 0 से x, मेक श्योर बच्चों ये हमेशा बीच में x होना चाहिए। तो पहले तो ये चेक कर लेते हैं क्या ये है आपके पास, यस, 0 से t है और t से 1 है, 0 से t है और t से 1 है, 0 से t है और t से 1, 0 से t और t से 1, फाइन, ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। लेकिन अगर आप इस सॉल्यूशन को लिखोगे, इसको राइट साइड पे लेके जाओगे तो ये नेगेटिव आएगा यहां पे, लेकिन आपको तो यहां पॉजिटिव चाहिए। नाउ द शॉर्टकट ट्रिक्स इज माय हियर, फाइन। अगर आपका सॉल्यूशन यहां पॉजिटिव है, फाइन, तो सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करवाना आपने हमेशा, फाइन। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ g with respect to x when x approaches t positive, that is a f2, that is partial derivative of the f2 with respect to x minus t negative is my here, that is partial derivative of is my minus 1 over coefficient of the y double dash, फाइन। अगर आपका ये पॉजिटिव है, अगर यहां नंबर आपका नेगेटिव है, फाइन, तब ये नंबर आपका नेगेटिव हो जाएगा और ये नंबर आपका पॉजिटिव हो जाएगा, सिर्फ इतना डिफरेंस आएगा। तो अब आप चेक कर लेते हैं इस केस में आपके पास पॉजिटिव था कि नेगेटिव है। तो पहले u देख लेते हैं, ये u आपका क्या है, माइनस लैम्बडा, फाइन। तो इसका मतलब ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आ गई, तो आपका रूल ये लगेगा, फाइन। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस कितने मिनट चाहिए आपको? 1 मिनट, फाइन, क्योंकि एग्जामिनेशन से पहले आप इस शॉर्टकट ट्रिक्स की प्रैक्टिस करके जाओगे आप। सो पहला ऑप्शन पे चलते हैं अभी, फाइन। दिस इज माई f2, इसको आपने डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x विद द नेगेटिव साइन, सो दैट वैल्यू विल बी माइनस, इसको x के साथ डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, फाइन, प्लस इसको x के साथ डेरिवेटिव करें तो ये कितना आंसर आना चाहिए, -1 ओवर कोफिशिएंट ऑफ द u डबल डैश। तो क्या ये आएगा? नो, ये आंसर तो 2 इज इक्वल टू -1, नॉट सेटिस्फाइड, पहला ऑप्शन कैंसल। सेकेंड ऑप्शन, इसको x के साथ डेरिवेटिव करो, माइनस के साथ 0, प्लस इसको x के साथ डेरिवेटिव करो, इट इज -1 एंड विच इज सेटिस्फाइड। सो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि आपका पार्ट बी का ऑप्शन था तो एक ही करेक्ट ऑप्शन मिलेगा, तो आप डायरेक्टली सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन कैंसिल कर सकते हो आप। लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हो मैं कर देता हूं आपके लिए, इसको x के साथ डेरिवेटिव करिए 0, इसको x के साथ डेरिवेटिव करिए माइनस ऑफ 2x विच इज नॉट इक्वल टू -1। लुक एट द लास्ट ऑप्शन,
इसको x के साथ डेरिवेटिव करिए विद द नेगेटिव साइन, इट इज 1 प्लस टी, प्लस इसको x के साथ डेरिवेटिव करिए, इट इज t माइनस 1। सो अगर आप ओपन करोगे तो ये वैल्यू -2 आएगी, बट इट इज नॉट इक्वल टू -1। तो फोर्थ ऑप्शन भी कैंसल, आपका राइट ऑप्शन हो गया बी इज माई करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए सिर्फ ये डेरिवेटिव निकालने में आपको 1 मिनट का समय भी नहीं लगेगा। एंड उम्मीद करता हूं आपका ये रिएक्शन चेंज हो गया होगा वाव में। फाइन, कमेंट करके जरूर बताइए स्टूडेंट्स, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अगर आप चाहते हो मैं नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूं, आपको वीडियो को लाइक और कमेंट करना होगा। चलिए, लुक एट दिस नेक्स्ट वन again, which is related to the differential equations, and it transformed to the second order differential with the constant coefficients. अभी यहां देखिए constant coefficient नहीं है, these are the function of the x, so your target is to make these are my constants. Fine. Now how you can make them transfer constants? By using the some transformations, and the derivative is 1. How you can solve this question? Again, अगर आपका रिएक्शन ये था एग्जामिनेशन में कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बिलीव मी काफी आसान है। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, अगर आपने मेरी ये प्लेलिस्ट देखी है थ्योरी लेक्चर की, फाइन, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्या करना है आपको, एक ऐसा फंक्शन चूज करिए एस अपने दिमाग में जिसका डेरिवेटिव 0 पे 1 आ जाए। फाइन, तो 0 पे 1 कब आएगा, एक्सपोनेंशियल पार्ट पे, तो मैं इसको e की पावर x फंक्शन ले लेता हूं। फाइन, और आप ये भी ले सकते हैं ना, कोई कांस्टेंट ले लो तब भी डेरिवेटिव 1 आएगा। क्लियर। नाउ योर टारगेट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx एंड सेकेंड डेरिवेटिव। तो ये क्या हो जाएगा वैल्यू, dy ओवर ds इंटू ds ओवर dx। फाइन, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ds ओवर dx, इट्स e रेज़ टू पावर x dy over ds. Now can you find the second derivative? x के साथ डेरिवेटिव करेंगे तो बाय प्रोडक्ट रूल लगाएगा, x के साथ करेंगे तो पहला यही रह जाएगा। फाइन, प्लस जब इसको x के साथ करेंगे, इस वाले पार्ट को जब आप x के साथ करोगे तो मैं फिर से इसी तरह से लिखूंगा इसको। फाइन, और ये वैल्यू आपकी फिर से क्या बन जाएगी, e की पावर x। सो इट इज e रेज़ टू पावर 2x, और ये आपका बन जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर ds स्क्वायर। क्लियर। अब ये दोनों वैल्यूज आप गिवन इक्वेशन में फिल कर दो, तो ये क्या बन गई आपकी इक्वेशंस, इसको मैं क्लियर करके यहां लिख देता हूं। सो दैट विल बी e रेज़ टू पावर 2x, इसको मैं y डबल डैश लिख लेता हूं बार बार लिखने की बजाय, प्लस e की पावर x y डैश प्लस p इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। सो दैट्स p e की पावर x y डैश e रेज़ टू पावर 2x y। ये कांस्टेंट कोफिशिएंट कब जाएगा, इसको e की पावर 2x से डिवाइड कर देते हैं। सो y डबल डैश e रेज़ टू पावर माइनस x 1 प्लस p ऑफ y डैश प्लस y इज इक्वल टू 0। अब ये कांस्टेंट कोफिशिएंट कब जाएगा, ये तो कांस्टेंट हो गया आपका, व्हेन इट विल बी द कांस्टेंट, जब ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट होगी। फाइन, और आप एक p की वैल्यू को चूज कर लो, इसमें से p आप क्या चूज कर सकते हो, -1 प्लस e की पावर x ले लें। फाइन, जिससे ये कैंसिल हो जाएगा। सो योर p विल बी हियर, सो यू कैन सी द फर्स्ट ऑप्शन, e की पावर -x p प्लस 1, दैट इज अ px प्लस 1 इज अ कांस्टेंट फंक्शन। सेटिस्फाइड, बिकॉज आपने जो फंक्शन लिया वो इसको सेटिस्फाइड हो रहा है। अगर आप इस वाले, दैट इज अ p विल बी माई हियर। आप सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, बिकॉज पार्ट बी का क्वेश्चन था तो आपको आंसर मिल गया a। अदरवाइज e की पावर -2x इंटू p, तो आप देखो e रेज़ टू पावर -2x इंटू p, क्या ये आपको कांस्टेंट मिलेगा, नो, बिकॉज ये कैंसिल ही नहीं होगा, तो सेकंड ऑप्शन इज कैंसिल। थर्ड ऑप्शन, p अप्रोचेस 1 एज x अप्रोचेस इंफिनिटी, क्या x अप्रोचेस इंफिनिटी पे इसका आंसर कितना आएगा, इंफिनिटी, विच इज नॉट 1, सो दैट ऑप्शन इज ऑल्सो कैंसिल। फाइन, नाउ लुक एट द थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि s आपका ये नहीं होना चाहिए, e रेज़ टू पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, पहले ये कंडीशन चेक कर लेते हैं, क्या ये इसको सेटिस्फाइड करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा। फाइन, सो अगेन से फिर ये निकाल लेते हैं। फाइन, तो क्या होगा इसका, ये डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, e की पावर 2x इंटू डी वाई ओवर डी एस। फाइन, तो सेकेंड डेरिवेटिव कर लेते हैं, इसका क्या आ जाएगा, 2
dy over dx प्लस ये आपका e की पावर 4x हो जाएगा और y डबल डैश। तो क्लियरली से यहाँ पे 4x है, जब मैं इसमें फिल करूंगा y डबल डैश प्लस 2e की पावर 2x y डैश प्लस p ऑफ e की पावर 2x y डैश प्लस e ऑफ 2x ऑफ y। अगर मैं e की पावर 4x से डिवाइड करता हूं हर तरफ तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, e की पावर माइनस ऑफ 2x 2 प्लस p ऑफ y डैश प्लस e रेज टू पावर माइनस 2x। तो ये चीज तो आपकी कांस्टेंट बन जाएगी, हाय, बिकॉज आप p को ले सकते हो माइनस ऑफ 2 प्लस e की पावर 2x, ये तो कांस्टेंट बन जाएगा। लेकिन ये चीज कभी भी कांस्टेंट नहीं आएगी भी, फाइन। अगर ये चीज कभी भी कांस्टेंट नहीं आएगी दैट मींस s इज नॉट दिस ट्रांसफॉर्मेशन, फाइन। सो दिस ऑप्शन इज कैंसल, राइट आंसर इज ओनली a इज माई करेक्ट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम, फाइन। तो देखिए आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन लेनी थी सिंपल, वेरी सिंपल। कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, ओके। अगर आप सोचो कि सर आपने ये e की पावर x कैसे ले लिया, कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा नहीं होगा tan इनवर्स प्लस समथिंग डिवाइडेड बाय हियर, बिकॉज जो भी एग्जामिनर ने पेपर आपके लिए बनाया है उसने यही सोच के बनाया है कि आपको 1 मिनट का समय लगे सॉल्व करने के लिए। वो आपकी चॉइस है कि आप इसको जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स करते रहिए, फाइन। लेकिन एग्जामिनर ने ऐसे ही एग्जाम्पल्स हमेशा सोच के बनाते हैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो द प्रोफेसर ऑफ सम यूनिवर्सिटी। तो हम कभी भी एग्जाम बनाए इसी तरह से सोच के बनाते हैं कि आपको काउंटर एग्जाम्पल डायरेक्टली मिल जाए, कभी भी इस तरह से ना मिले tan इनवर्स 1 over 1 प्लस एक्स करके चूज करिए जिससे उसका डेरिवेटिव ये आ जाए, कभी नहीं हम चाहेंगे हम आपको, फाइन। अगर आप ये सोचो कि सर इस केस में s की वैल्यू को अगर मैं -1 over 1 प्लस एक्स ले लूं तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, इट विल बी 1 over 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप ये भी सेटिस्फाइड हो रहे हैं, लेकिन आप देखो इसका डेरिवेटिव निकालना काफी मुश्किल हो जाएगा, फाइन। तो आप इसको बाद में अज्यूम करिए, लेकिन इससे आसान ऑप्शन आपके पास e की पावर x का ऑलवेज अवेलेबल है, फाइन। सो मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियोस अच्छे लगे होंगे ये क्वेश्चंस, और आप डोंट फॉरगेट कि आप ये प्लेलिस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की और ये कंप्लीट सीएसआर गेट की पूरी वीडियोस देखिए। आप खुद कहेंगे कि सर दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल टू अस। आप में से कितने लोगों ने वीडियोस देखी आई नेवर नो, बट इफ यू सेंड अ कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन नो वेदर दीस आर बेनिफिशियल और नॉट। उम्मीद करता हूं आप वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। I will upload the next lecture on the partial differential equation very soon if I get the good number of the likes and the comment on the video. Till then, you can share this video and don't forget to subscribe my YouTube channel. Best of luck, students. Happy learning always.